Hello friends, so today we would be moving ahead and talking about the another organelle in the cell chapter. Okay, and this organelle is only present with the plant cell. That means I am talking about the plastid. ठीक है, तो आज प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं. ओके, प्लास्टिड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल. ठीक है, एंड इट्स एब्सेंट विद द एनिमल सेल. एंड plastid helps in the process of photosynthesis as well as storage and formation of organic compounds. ठीक है, so let's put it down on the board. Plastids ठीक है, so plastids were discovered by Haeckel. ठीक है, or you can also term it as कि the term plastid was given by Haeckel, okay, or coined by Haeckel. It has many characteristics which match with the mitochondria. जैसे कि it consists of double-stranded DNA. It consists of 70S ribosome. It has its own protein. And it is also a endosymbiont. Okay, endosymbiont, that means it has been evolved from the bacteria or the prokaryotic cell and it is staying inside the other cell. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की है. माइटोकॉन्ड्रिया से पहले पढ़ा था अपन ने. 70S ribosome, that is also the characteristics of a mitochondria or the bacterial cell. Its own protein, endosymbiont. तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि this organelle, the plastids are semi-autonomous. Why semi-autonomous? Because they have the ability to produce their own protein as they have their own DNA and ribosomes. खुद का प्रोटीन बना सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, उनको we can term it as the semi-autonomous organelles. ठीक है, because they have the ability to make their own proteins, not all the proteins but some of the proteins. So we term it as the semi-autonomous. Mitochondria is semi-autonomous. ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज जो प्लास्टिड्स के साथ एसोसिएटेड है, that is they have the ability to transform themselves. They have the ability to undergo transformation. They can transform from one form to another. ठीक है, तो अपन देख लेते हैं. So copy down the details. Discovered by or termed by or coined by Haeckel. The name of the scientist is Ernest Haeckel. It consists of double-stranded DNA, 70S ribosome, own proteins, endosymbiont है, semi-autonomous है. ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं थी. ये बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज है ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अवेलेबल है. ठीक है, जो दूसरी बातें थी दैट वाज आई कैन ऑल्सो पुट एज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया था. ठीक है, और एक और चीज अपन पुट कर सकते थे, हेल्प इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब मैं लिख देता हूं, दे ऑल्सो हेल्प इन दी स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ organic matter. Clear है? Done. So we'll talk about different types of plastids now. So we have three types of plastids. One is chloroplast, leucoplast, and chromoplast. This one gives green color, this one gives a color range between yellow to red, and this is colorless. This does not give any color. It is only helpful in storage.
सिर्फ स्टोरेज में काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। तो जितने भी प्लास्टिड्स हैं यहां पे, जैसा प्लास्टिड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोप्लास्टिड। इन सब का फॉर्मेशन हुआ है प्रोप्लास्टिड से। दे आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, ठीक है, एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। जैसे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, और ये क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म होके ल्यूकोप्लास्ट भी बना सकता है। द क्लोरोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म एंड फॉर्म ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। I'll just arrange it, rearrange it. I'll first put the leucoplast. We'll take some examples of it as well. ठीक है, so leucoplast, then chloroplast and chromoplast. मैं यहां पे लिख देता हूं. We'll mention the colors as well. चलो, this is कलरलेस, स्टोरेज में काम में आता है. दिस गिव्स ग्रीन कलर, ठीक है, एंड दिस गिव्स अ कलर रेंज फ्रॉम येलो टू रेड, येलो टू रेड, ठीक है. तो ल्यूकोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट. Leucoplast can transform into chloroplast, chloroplast can transform into chromoplast. Getting the idea? ठीक है. तो leucoplast खुद को भी फॉर्म कर सकता है. It can also form इस तरीके से होगा. leucoplast खुद को भी बना सकता है, ठीक है. leucoplast क्रोमोप्लास्ट को भी बना सकते हैं इन द सेंस इट कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है. गेटिंग द होल आइडिया कि ल्यूकोप्लास्ट कैन फॉर्म क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट. उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट एंड दे कैन फॉर्म देयर ओन टाइप्स. ल्यूकोप्लास्ट बना सकता है, क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, ठीक है. सो विल टेक अ वेरी नाइस एग्जांपल. लेट्स टॉक अबाउट टमाटो. यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. सी, तो अगर मैं टमाटो की बात करता हूं तो जो टमाटो है उसका जो ओवरी होता है, इफ वी टॉक अबाउट द ओवरी, क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होगा? टमाटो इज अ फ्रूट, तो फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? ओवरी से होता है. आपको पता है फर्टिलाइज्ड ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट. तो पहले ओवरी बनेगा, ओवरी के बाद वी हैव यंग टमाटो. यंग टमाटो इन द सेंस इट हैज नॉट येट मैच्योर्ड, एंड देन वी हैव द मैच्योर्ड टमाटो, ठीक है. अभी यहां पे मैं ओवरी की अगर बात करता हूं, द ओवरी ऑफ टमाटो इज colorless. The young tomato is green in color and the mature tomato is red in color. That is the whole idea. यार जो टमाटो की ओवरी होती है वो कलरलेस होती है, बट जब उसी ओवरी से फ्रूट बनता है या टमाटो का फॉर्मेशन होता है तो यंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो टमाटो होता है वो ग्रीन होता है. फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो रेड हो जाता है. तो यहां पे अगर आप देखो कि जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट है इनके अंदर, दोस प्लास्टिड्स आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स. किस तरीके से? सो ओवरी के अंदर कलरलेस है, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. नाउ दिस ल्यूकोप्लास्ट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मैंने यहां पे ग्रीन कलर दे रखा है, ठीक है. सो दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. और फिर मैंने क्या बोला कि यार यंग टमाटो कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर टमाटो, सो दैट बिकम्स रेड इन कलर. सो रेड इज विद द क्रोमोप्लास्ट
ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दी plastids are transforming themselves from leucoplast to chloroplast and from chloroplast to chromoplast. ठीक है, ovary, young tomato and mature tomato, getting the whole concept. ठीक है, उसी तरीके से we can also talk about the capsicum. अगर कैप्सिकम की बात करते हैं तो इनिशियली द यंग कैप्सिकम इज गोइंग टू बी, या फिर आप चिली की बात करो, ओके, तो द यंग चिली इज गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर, मतलब इट पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, और वो जिस तरीके से और मैच्योर होती जाती है द कलर चेंजेस टू रेड, द कलर इज गोइंग टू चेंज टू रेड। तो यहां पे क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना। ठीक है, सो प्लास्टिड्स की एक सबसे इंटरेस्टिंग एबिलिटी है दैट दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म, दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे, सो नाउ विल डिस्कस ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स प्लास्टिड्स। आई होप दिस इज क्लियर। Let's talk about the leucoplast first. Let's put it in a column. ठीक है, so we'll put it as leucoplast, the chromoplast and the chloroplast. ठीक है, so leucoplast की बात करते हैं तो we have to remember one thing, it is colorless. ठीक है, इट इज कलरलेस। तो क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें, द क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड, द क्लोरोप्लास्ट इज कलर्ड एज वेल, द क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड एज वेल। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वी नीड टू नो दैट कि पिगमेंट्स जो है, जो कलर दे रहे हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट विद क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। यहां पे पिगमेंट्स क्या है, तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं पिगमेंट्स एब्सेंट। तो यहां पे पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, यहां पे भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पे पिगमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वी हैव द पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स व्हिच गिव्स द कलर रेंज फ्रॉम येलो टू रेड, और यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। उससे पहले विल टॉक अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट, बिकॉज यहां ये कलर नहीं दे रहे, दे मेनली डील विद द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट दे डील विद स्टोरेज and it can be divided into further components like a uroplast, a myeloplast and elioplast. A myeloplast, a uroplast and elioplast. These are the parts of leucoplast and they do not give any color. They only deal with the process of storage. तो यार जो eleuroplast है, it deals with the storage of protein. It deals with the storage of protein. अगर आपको याद हो तो जो मेज सीड होता है, मेज सीड के पास एक एल्यूरोन लेयर होता है,
A maize seed consists of alluron layer that is rich in protein. That is rich in protein. अमाइलोप्लास्ट की बात करते हैं तो अमाइलोप्लास्ट का काम है टू स्टोर दी स्टार्च. टू स्टोर दी स्टार्च. अगर एग्जांपल देखते हैं अमाइलोप्लास्ट का, सो वी हैव दी पोटैटो ट्यूबर्स. वी हैव दी potato tubers and wheat. ठीक है, wheat grains आप लिख सकते हो. और इलायोप्लास्ट की अगर बात करें तो इलायोप्लास्ट दे स्टोर फैट. दे स्टोर फैट. दे स्टोर लिपिड्स. फैट. ठीक है, तो जितने भी सीड्स है, जैसे कि कैस्टर, वी कैन पुट इट हियर, ग्राउंडनट, so they are rich in the elioplast because elioplast stores fat, lipids. ठीक है, so I'll repeat once again. Leucoplasts are colorless. They deal with the process of storage. So we have three types of leucoplasts. We have alluroplast, we have amyloplast, and we have elioplast. Alluroplast, they store protein. Amyloplast, they store starch, and elioplast, they store fat or lipids. They are also termed as lipoplast because they store the lipids. ठीक है, where do you find them? So you find them in the castor and the groundnut seeds. Amyloplast, potato tubers and wheat, and alluroplast that is present in the maize seed, the alluron layer. ठीक है, so let's move ahead and talk about the chromoplast. तो chromoplast तो कलर देने का काम करता है. इट्स कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट. तो पिगमेंट की अगर मैं बात करता हूं, सो द पिगमेंट इज कैरोटिनॉइड्स. Pigments, we have carotenoids, and the color range is yellow to red. येलो से लेकर रेड के मिक्सचर से जितने भी कलर्स मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद द कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, नाउ कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कलर मेक्स द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल, द फ्रूट लुक्स गुड विद द कलर. सो दिस कलर वुड बी हेल्पफुल. This color would be helpful in pollination of seeds and pollination of pollen grains and dispersal of seeds. क्योंकि जितना कलरफुल फ्लावर होगा, जितना एनिमल्स, बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे. जितना कलरफुल फ्रूट होगा, जितने बर्ड्स, एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे. सो द चांसेस ऑफ गेटिंग पॉलिनेटेड और द चांसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द सीड ऑफ अ कलरफुल फ्लावर और अ कलरफुल फ्रूट इज मोर कंपेयर्ड टू द कलरलेस फ्लावर. क्लियर है? सो वी हैव कैरोटिनॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ photosynthetic pigment. Okay, that is the chlorophyll. It consists of chlorophyll. Clear है? Carotenoids भी present होते हैं यहाँ पे. Carotenoids are present as well. ठीक है, so the chloroplast is a photosynthetic plastid आप बोल सकते हो. It is a photosynthetic plastid. One more thing we can remember about chromoplast is it also helps in lipid synthesis. It also helps in the lipid synthesis. It also helps in lipid synthesis. ठीक है, so these are some of the characteristics of three types of plastids. ठीक है, the one which performs photosynthesis is the chloroplast.
Okay, chloroplast के अंदर जो pigment present है chlorophyll, okay, that is going to perform the photosynthesis. Okay, and carotenoids are the ones which are going to help it. अच्छा, color की बात करते, color range we haven't mentioned. The color range is green. So green color आपको जहां पे भी दिखेगा, that is because of chloroplast. येलो से लेके रेड के बीच का जो कलर रेंज दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. और अगर कलर नहीं प्रेजेंट है तो दैट इज गोइंग टू बी ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो नाउ विल टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अपन बात करेंगे. ठीक है, सो इन शॉर्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. सो विल गो थ्रू द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड देन विल टॉक अबाउट द डिटेल्स. So chloroplast deals with photosynthesis. Chloroplast deals with photosynthesis. अब मैं थोड़ा सा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूं सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में क्या चीज परफॉर्म हो रही है. विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन. तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. सो फोटोसिंथेसिस can be divided into two main parts, or there are two main events that are taking place in photosynthesis, and those two events are the first event that takes place is known as the light reaction. The first event that takes place, that is the light reaction, and the second event that takes place is known as the dark reaction. ठीक है, द इवेंट्स देन अकर्ड साइमल्टेनियसली. फिर वो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर करते हैं. सो फर्स्ट दैट इज लाइट रिएक्शन, देन वी हैव द डार्क रिएक्शन. नाउ लाइट मैंने लिखा है तो बट ऑब्वियसली दिमाग में आ जाता है कि यार देयर समथिंग विद द सन, सनलाइट से कुछ होगा बिकॉज फोटो इज द सनलाइट. सो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देना, द सनलाइट के पास जो एनर्जी है, द सोलर एनर्जी, okay, that is going to be converted into, this is going to happen in the daytime. ठीक है, ये याद रखना है. But that doesn't mean this is happening in the dark. रात को नहीं. Don't get confused with the term dark. Dark has nothing to do with कि यार it is only taking place in the dark or in the night. जैसे यहाँ पे मैंने बोला it's taking place in the presence of light. But यहाँ पे ऐसा नहीं है. Okay, so the solar energy जो सन के पास प्रेजेंट है, ओके, दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है बिकॉज आपको पता है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो लाइट रिएक्शन वाले फेज में क्या किया जाता है, with the help of the pigment जो अभी अपन ने देखा chlorophyll, they convert the solar energy into the chemical energy because our body or the plant body, it works on the chemical energy, and that chemical energy is ATP and NADPH. These are two forms of chemical energy, ATP and NADPH. I'll give you the full form. ठीक है, सो लाइट रिएक्शन एक पार्ट हो गया जहां पे आप क्या कर रहे हो, सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को ट्रैप कर रहे हो और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, केमिकल एनर्जी में. इफ यू टॉक अबाउट द डार्क रिएक्शन, सो डार्क रिएक्शन में वी यूज अ टर्म विच इज नोन एज CO2 फिक्सेशन. वी यूज अ टर्म CO2 फिक्सेशन. CO2 फिक्सेशन का सिंपल अगर मतलब मैं आपको बताऊं, दैट इज formation of food. प्लांट के केस में फूड क्या है, ग्लूकोज. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम
कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो CO2 को फिक्स करने का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इन शॉर्ट इट इज टर्म्ड एज कार्बन फिक्सेशन। ठीक है। सो व्हेन यू ईट फूड, जब अपन खाना खाते हैं अपन को एनर्जी मिलती, दैट इज बट शो। ओके, बट खाना बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। अगर मम्मी घर में खाना बना रही है, शी इज कुकिंग, okay, so obviously when you eat that food you'll get the energy, but for cooking also there is requirement of energy by the mother or the person who cooks the food. So उसी तरीके से यहाँ पे जो फूड बना है CO2 फिक्सेशन के थ्रू, उससे क्या मिलेगा? आपको एनर्जी मिलेगा, प्लांट को एनर्जी मिलेगा, अपन को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, बट फॉर दैट प्रोसेस ऑल्सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू मेक दैट फूड। दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय द ATP एंड NADPH, जो आपने कब बनाया था? लाइट रिएक्शन में बनाया था। सो आप देख सकते हो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लाइट रिएक्शन में जो कंपोनेंट्स बने, दैट इज ATP एंड NADPH. ATP and NADPH, they are going to be used in the dark reaction for the formation of glucose. ठीक है, तो आप बोल सकते हो डार्क रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द लाइट और डार्क, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH है, तो उसके ऊपर तो डिपेंडेंट है। आप इमेजिन करो CO2 फिक्सेशन तो इसके बिना हो ही नहीं सकता, बिकॉज CO2 फिक्स करने के लिए, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगी? लाइट रिएक्शन से आएगी। ओके, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सन इज प्रेजेंट। रात को तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। कहां कहां पे होता है वो भी मैं लिख देता हूं। क्लियर है? सो आप इतना याद रखो, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है। इज इट क्लियर? सो लाइट रिएक्शन में द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, जहां पे क्या होगा? CO2 फिक्सेशन होगा। CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और फिर प्लांट उसमें से एनर्जी निकालेगा खुद के लिए। और अगर उस प्लांट को अपन कंज्यूम करते हैं, अगर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी? एनिमल्स के पास जाएगी। सो इट इज जस्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसलिए सन को क्या कहा जाता है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी भी एनर्जी आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे और दो लेबलिंग्स आएगी जो अपन करेंगे। वो लेबलिंग्स मैं यहां पे लिख देता हूं, सो दैट यू कम टू नो कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहां हो रहा है, डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहां हो रहा है। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी stroma, in the stroma. We'll label it, okay, stroma, and the light reaction takes place in the thylakoid, वो भी एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको अपन लेबल करेंगे, and the stroma lamella, and the stroma lamella. ठीक है, सो अभी आप इतना याद रखो कि यार थायलाकॉइड में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। स्ट्रोमा लैमिना में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। ओके, मतलब लाइट रिएक्शन होगा, दैट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो पिगमेंट अभी अपन ने देखा था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन थायलाकॉइड। मैं यहां पे लिख देता हूं सी करके, एंड स्ट्रोमा लैमेला, एंड स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, और मैंने यहां पे नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, आई एम सॉरी, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज यहां पे आप लाइट एनर्जी को फिक्स नहीं कर रहे हो, यहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करो और उससे खाना बना लो। क्लियर है? अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम याद रखना है, जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है या फिर स्ट्रोमा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम लोकेटेड है, दैट इज रुबिस्को। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। उसका भी फुल फॉर्म अपन लिख लेंगे। We have a very important enzyme associated with dark reaction that is known as Rubisco. ठीक है, और एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है केल्विन साइकिल, जिसके अंदर CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। सिंपल एंड इजी। ठीक है, सो विल टेक द फुल फॉर्म।
लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. इज इट क्लियर? डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रात को हो रहा है. इट इज गोइंग टू अकर अलोंग विद द लाइट रिएक्शन, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द लाइट. आप बोल सकते हो डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट बिकॉज इट यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सो दो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं. एक पॉइंट को पहले लिख देता हूं. डार्क रिएक्शन is not directly dependent on light reaction but is indirectly dependent on light reaction. ठीक है. more details we would go through जब आप photosynthesis वाला चैप्टर पढ़ोगे. अभी it is not required. ठीक है. so dark reaction is indirectly dependent on light reaction because it uses the products of light reaction. इतना बात आपको याद रखना है. फिर मैंने एक एंजाइम बोला रुबिस्को. ओके. रुबिस्को एंजाइम कब काम आता है? ठीक है. तो रुबिस्को एंजाइम काम आता है जब CO2 को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में. रुबिस्को एंजाइम कब काम आता है? तो ये डार्क रिएक्शन में काम में आता है. और डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है? कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज. इट इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन जो अभी मैंने बोला. और उस प्रोसेस में क्या किया जाता है? CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो एंजाइम यहां पे काम में आएगा रुबिस्को. ठीक है. फुल फॉर्म देखिए. सो दैट इज रिबुलोज. Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंजाइम. इसके बारे में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को इज रिबुलोज 1,5-bisphosphate carboxylase और ऑक्सीजनेस. ठीक है. ये कार्बन भी फिक्स करता है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है. ठीक है. दूसरी बात जो मैं आपको बोल रहा था दैट वाज, अच्छा एक और बात आप याद रखोगे कि यार रुबिस्को इज द मैक्सिमम अवेलेबल एंजाइम इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा जो एंजाइम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलेगा और विच द एंजाइम विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन द वर्ल्ड. द एंजाइम विच इज found in abundance in the world is Rubisco. Now, why is it available in abundance? ये आप मुझे बताओगे. You need to drop me a message and let me know कि why Rubisco is found in abundance in the world. या सबसे maximum amount of enzyme जो world में है that is Rubisco. You need to tell me why. ठीक है. So मैंने full form आपको बता दी. Now एक और जो चीज मैंने आगे लिखी थी एटीपी लिखा था. एटीपी का फुल फॉर्म आपको बताया दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज एनर्जी, केमिकल एनर्जी. दूसरी जो चीज मैंने लिखी थी दैट इज NADPH. सो NADPH stands for, it's also a form of energy, chemical form of energy. That is nucleotide nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. ठीक है. सो NADPH stands for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. It is also a energy molecule. So now we'll go to the structure of chloroplast. So double membrane structure है, double stranded DNA भी उसके पास. Okay, so I'll draw it like this. अच्छा, before I talk about the structure, we'll go through the different shapes और chloroplast की किस टाइप के shapes देखने को मिलते हैं. So chloroplast was coined or termed by the
scientist Kimper termed by the scientist Skimper. I'm sorry. Termed by the scientist Skimper. ठीक है. अगर we talk about the higher plants, शेप की बात करें, अगर हायर प्लांट्स की बात करें, so what shapes do we find in the higher plants? So we are going to have disc shape, spheroid shape, शेप देखने को मिलेगा, डिस्क शेप देखने को मिल सकता है, ओवॉइड शेप देखने को मिल सकता है, ठीक है. एंड द मोस्ट कॉमन इज द लेंस शेप. तो सबसे कॉमन शेप मैक्सिमम देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द लेंस शेप. ठीक है. सो स्पिरॉइड शेप है, डिस्क शेप है, ओवॉइड शेप भी देखने को मिल सकता है, एंड सबसे मैक्सिमम जो देखने को मिलता है दैट इज दी लेंस शेप. अगर मैं आल्गे की बात करूं, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ आई टॉक अबाउट द ग्रीन आल्गे, तो ग्रीन आल्गे में आई फाइंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल. जैसे कि अगर मैं बात करता हूं स्पाइरोगायरा, इफ आई टॉक अबाउट स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड रिबन शेप. उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा इज ट्विस्टेड रिबन शेप. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट क्लामिडोमोनास, क्लामिडोमोनास, क्लामिडोमोनास अगर क्लामिडोमोनास की बात करते हैं, इट इज कप शेप. इट इज मीन्स द क्लोरोप्लास्ट इज कप शेप्ड. उलोथ्रिक्स की अगर बात करते हैं, if we talk about उलोथ्रिक्स, so उलोथ्रिक्स में it is going to be collar shaped. It is going to be collar shaped. ठीक है. और अगर बात करते हैं zygnema, that's a type of green algae. Zygnema. ठीक है. If I talk about zygnema, it is going to be star shaped. कौन सा शेप है? It's going to have the ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट ओडोगोनियम, तो उसमें जो शेप देखने को मिलता है दैट इज रेटिकुलेट शेप. ओडोगोनियम विच शेप? रेटिकुलेट. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहां पे लिख देते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट शेप. So higher plants में they are going to be spheroid shape, dish shaped, ovoid shape. And the most common or the maximum found is the lens shape. उसी तरीके से अगर ग्रीन आल्गी की बात करते हैं तो ग्रीन आल्गी में जो स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा में अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी ट्विस्टेड रिबन शेप्ड. क्लामिडोमोनास में देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी कप शेप्ड. उलोथ्रिक्स में देखोगे तो कॉलर शेप्ड है. एंड ज़ाइग्निमा में देखोगे तो स्टार शेप्ड है. और अगर ओडोगोनियम में देखोगे तो इट्स रेटिकुलेट शेप्ड. ठीक है. सो पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स. आई स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. It's a double membranous structure.
So I need to make two membranes. The outer let's make the outer one. जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बात करी थी कि यार माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है. सो यहां पे जैसे जरा पोर्स नाउ दे सपोज टू बी पोर्स. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में भी पोर्स अवेलेबल थे. So we have the outer membrane, okay, and we are going to have the inner membrane. So this becomes the outer membrane and this becomes the inner membrane. Okay, the pores which are present on the outer membrane are termed as porins. They are termed as porins. Let me put it here. ठीक है, which makes the membrane permeable. Permeability outer membrane की सबसे ज्यादा रहेगी. ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है that is known as the matrix. That is known as the matrix. और जो स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में that is known as the intermembrane space. Intermembrane space. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है दैट इज टर्म्ड एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. और जो जगह इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स. दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स. नाउ दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ baggy structures. Okay, it consists of baggy structures which are termed as thylakoids. One of them is going to be termed as thylakoids. And they look as if they are arranged on one above, एक दूसरे के ऊपर arranged है. This single is thylakoid. ठीक है, and they are connected to each other as well. They are connected to each other as well. ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इट इज द मैट्रिक्स पार्ट. ये पूरा मैट्रिक्स है जिसे कहा जाता है ये भी पूरा मैट्रिक्स पार्ट है. ठीक है, नाउ जैसे मैंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इंडिविजुअली अगर इन्हें देखें, इफ आई टॉक अबाउट देम एज एन इंडिविजुअल, इस तरीके से दे आर टर्म्ड एज थाइलोकॉइड्स. अगर मैं एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है? थाइलोकॉइड कहा जाता है. और थाइलोकॉइड के अंदर स्पेस होती है. There's a space here which is termed as lumen. क्या कहा जाता है? Lumen. And the chlorophyll is present inside the lumen. आपको याद रखना है थाइलोकॉइड जो है, ओके, ये जो पूरा मैंने दिखा रखा है सिंगल ऑफ द is known as thylakoid. और उसके अंदर जो स्पेस है that is known as lumen. And lumen is going to consist the photosynthetic pigment that is chlorophyll. That is chlorophyll. Are you getting it? ठीक है.
और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार काफी सारा स्टैक करा हुआ है, थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड वन अबाउट द अदर. सो पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखें, सो दिस इज टर्म्ड एज ग्रैनम. दे आर टर्म्ड एज ग्रैनम, और हर एक ग्रैनम में देयर आर अबाउट 2 to 100 थाइलाकॉइड्स. ओके, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अबाउट 2 to 100 थाइलाकॉइड्स. ठीक है, एज अ होल अगर मैं कंसिडर करता हूं this granum, this granum, this granum, this granum, so it is termed as grana. It is termed as grana. Grana. एक क्लोरोप्लास्ट में there can be about 40 to 60 of grana. एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 grana हो सकते. Grana is actually the plural and this is the singular. Granum is the single stack of thylakoids. अगर सबकी मैं बात कर रहा हूं, ऑल ऑफ देम, तो विल टर्म इट एज द ग्रैना. ठीक है, सो वी हैव ग्रैना एंड वी हैव ग्रैनम. ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज टर्म्ड एज ल्यूमिन, और ल्यूमिन के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो दिखा रखा है अपन ने, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा. दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है, द होल पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट. ठीक है, दैट इज द स्ट्रोमा. एंड वी हैव दिस ब्रिज कनेक्टिंग द ग्रैनम. द ब्रिज आर नोन एज स्ट्रोमा lamella. The bridge are known as stroma lamella. Okay, they're also termed as fret lamella. कहीं पे you can read it as the fret lamella. ठीक है, is it clear? So now it is very clear कि यार जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें कहां पे कहां पे डार्क रिएक्शन हो रहा है, कहां पे लाइट रिएक्शन हो रहा है. सो लाइट रिएक्शन होगा स्ट्रोमा लेमिला में एज वेल एज थाइलाकॉइड्स में. थाइलाकॉइड्स दैट इज द ग्रैनम वाला पार्ट, एंड द डार्क रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा, द मैट्रिक्स पार्ट. इज इट क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन इवेंट था, लाइट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा लेमिला एंड द थाइलाकॉइड्स. ग्रैनम भी बोल सकते हो, ग्रैना भी बोल सकते हो. और जो डार्क रिएक्शन था जहां पे CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा था, फिक्स किया जा रहा था फूड में, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा. सो द अवेबिलिटी ऑफ रुबिस्को इज इन द स्ट्रोमा. ठीक है, रुबिस्को कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है. दिस शुड बी दिमाग में बिठा लो. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू. डन. नाउ because of the presence of thylakoids या फिर because of the presence of the granum, the chloroplast appears granular. It appears like उसमें दाने दाने हैं. So we have two categories of chloroplast actually, the one with the thylakoids or the granum and the another without the granum. The one with the granum and other without the granum. ठीक है, so वो देख लेते हैं. मेम्ब्रेन आपने देखी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट थे, वो भी अपन चलो मेंशन कर देते हैं. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या रहेगी? इज गोइंग टू बी वेरी हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोर्स, जिसका नाम अपन ने क्या रखा? पोरीन. इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज पोर्स आर एब्सेंट, और पोरीन इज एब्सेंट आप बोल सकते हो. ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट की अगर लेंथ की बात करते हैं, सो द लेंथ कैन बी बिटवीन 2 to 3 micrometers and the width can be 5 to 10 micrometers. जो क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने, अगर उसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कैन बी 2 to 3 micrometers and the width can be 5 to 10 micrometers. ठीक है, मूविंग अहेड, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ we're talking about the granule chloroplast, the one with the so the one which has the granum, they are termed as ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, और जो दूसरी कैटेगरी है क्लोरोप्लास्ट की जिसमें अवेलेबल नहीं है, those are termed as a granule. Those are termed as a granule and we have granule. ठीक है, सो ग्रैनल किस किस के पास में, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रायोफाइट्स के पास ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, टेरिडोफाइट्स के पास ग्रैनल है, जिम्नोस्पर्म के पास ग्रैनल है, एंजियोस्पर्म के पास ग्रैनल है. तो ए ग्रैनल किसके पास? तो ए ग्रैनल इज पोजेस्ड बाय ग्रीन आल्गे. इट इज पोजेस्ड बाय ग्रीन आल्गे. ठीक है, और एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनको अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स. तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की एक कैटेगरी है C4 प्लांट्स. तो C4 प्लांट्स में ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन दी बंडल शीट सेल्स. बंडल शीट सेल्स ऑफ लीव्स. उसके जो लीव्स होते हैं C4 प्लांट्स के, सब C4 प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो C4 प्लांट यहां पे अवेलेबल है उसके पास ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, बट जो C4 प्लांट्स एंजियोस्पर्म में है यहां पे, और उनका जो बंडल शीट सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास ग्रैना नहीं होते. ठीक है, इज इट क्लियर? सो C4 प्लांट यहां पे भी बिलोंग करता है, C4 प्लांट यहां पे भी बिलोंग करता है, बट C4 प्लांट के जो लीव्स है जहां पे बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है, उन बंडल शीट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना नहीं होगा. मैं ये बोल रहा हूं, जो C4 प्लांट्स यहां पे इनके जो सेल्स है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वहां पे तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. डन. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट के दो टाइप्स भी अपन ने देख लिए. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात अपनी हो चुकी है. ठीक है, सो मैक्सिमम जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी यहां पे, ओके, दे मैच विद द क्लोरोप्लास्ट, दे मैच विद द माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था. ठीक है, तो यस, द क्लोरोप्लास्ट हैज द एबिलिटी, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आल्सो पोजेसेस, जो मैंने प्लास्टिड के लिए लिखा है, मैं फिर से यहां पे मेंशन कर देता हूं, जो क्लोरोप्लास्ट के लिए मैंने लिखा था, ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिखा था मैंने. सो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर, we term it as plastid, circular DNA, we term it as plastid. उसके पास भी राइबोसोम है. कौन से वाले राइबोसोम है? 70S राइबोसोम.
70S राइबोसोम है, ठीक है, और खुद के प्रोटीन से दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क विद द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल, और इट इज सेमी ऑटोनोमस, और एक और चीज जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखी थी, इट इज एंडोसिम्बायंट, Clear है? So chloroplast or the plastid that is only present with the plant cell, this is not going to be found in the animal cell. The very important function, that is photosynthesis, which we are going to study in the other chapter. जो photosynthesis वाला chapter, उसके अंदर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे photosynthesis का. It is not required right now. मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि photosynthesis में क्या होता है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है. मैंने आपको रुबिस्को के बारे में बता दिया कि रुबिस्को केल्विन साइकिल वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जहां पे वो क्या बनाता है, इट मेक्स द फूड दैट इज ग्लूकोज, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, एंड आई आस्क्ड यू कि व्हाई इज इट द मोस्ट अबंडेंट, यू नीड टू गिव मी द आंसर, ठीक है. सो आई कीप दिस मच फॉर द डे, ओके, फॉर दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द अनदर ऑर्गेनल. आई होप यू आर राइटिंग डाउन ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है, एंड मेकिंग द नोट्स. ओके, चलो बाय बाय.